وادی کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ کی نئی دلی میں اہم نشست، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر راج چیف سمیت اہم عہدیداروں نے کی شرکت۔ 3 جون کو ہوم منسٹر امت شاہ کریں گے وادی کی کلہم اور امرناتھ یاترا پر بڑی بیٹھک، ایل جی منوج سنہا بھی بیٹھک میں رہیں گے موجود۔ پرائم منسٹرز پیکیج ملازمین اور کشمیری پنڈت مہاجرین کا وادی سے نقل مکانی کا سلسلہ تیز۔ سری نگر میں ایئرپورٹ سے آج فلائٹوں میں کئی پنڈتوں نے جموں کی اور کیا کوچ۔ مٹن، اننت ناگ سمیت کئی جگہوں سے پنڈت ملازمین نے کی نقل مکانی۔ اجازت لے کر سرکار سے سیکورٹی انتظامات کیا مطالبہ۔ کل سے قومی شاہراہ پر پنڈت ملازمین جموں کے راستے گھر جانے کی کر رہے ہیں تیاری۔ اور جموں کشمیر سے امسال قریب 6000 عازمین حج روانگی سے قبل انتظامات کا کیا جموں کشمیر سرکار نے ایک بار پھر بیٹھکوں کا سلسلہ تیز۔ جموں کشمیر سے پہلی پرواز 5 جون سے عازمین کے قافلے کو لے کر ہوگی روانہ۔ یہ سلسلہ 15 روز تک رہے گا جاری۔ واپسی کا انتظام 15 جولائی سے ہوگا شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حالات حاضرہ پہ مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ میں اپنے میزبان ترجم الاسلام کا سلام پہنچے۔ جموں کشمیر، ملک بھر اور دنیا بھر کے حالات و واقعات کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ٹیلی ویژن نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا، یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک کے ذریعے سے اس نشریات کو عالمی سطح پر اس وقت سری نگر اسٹوڈیو سے بیک وقت دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، خبر کی شروعات کرتے ہیں جنوبی کشمیر کے کلگام علاقے سے۔ ناظرین، ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اور آج یہ بھی اطلاع ملی کہ کئی پنڈت گھرانوں نے دوبارہ 90 کی طرز پر نقل مکانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جنوبی ضلع کلگام میں مشتبہ ملیٹنٹوں نے جمعرات کی صبح راجستھان سے تعلق رکھنے والے غیر مقامی بینک مینیجر کو گولی مار کر ابدی نیند سلا دیا۔ پولیس ذرائع نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ملیٹنٹوں نے علاقائی دیہاتی بینک شاخ کلگام کے مینیجر وجے کمار پر نزدیک سے گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہوئے۔ ہمارے نمائندے نے بتایا کہ زخمی بینک مینیجر کو فوری طور پر تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ضلع اسپتال کلگام کے ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ حملے کے فوراً بعد پولیس، فوج اور فورسز نے پورے علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی کارروائی بڑے پیمانے پر شروع کر دی۔ گزشتہ 3 روز میں یہ اپنی نوعیت کا دوسرا ٹارگٹ کلنگ واقعہ ہے۔ اس سے قبل منگلوار کو نامعلوم مسلح افراد نے سانبا سے تعلق رکھنے والی رجنی بالا نامی استانی کو ہلاک کیا تھا۔ وادی کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ٹارگٹ کلنگ کے واقعات کے پیش نظر مرکزی وزارت داخلہ نے 3 جون کو ہنگامی میٹنگ طلب کی ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد کئی ایک جگہوں پر ہم نے پنڈت مہاجرین کو احتجاج میں بھی پایا۔ تصویریں کچھ دیر پہلے کی ہے۔ یہ وہ مقامی بینک مینیجر ہیں وجے کمار، جن کا تعلق راجستھان سے ہے، اور ان کے والد کا میسج کچھ دیر پہلے آ چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروبیشنری آفیسر کا امتحان پاس کرنے کی تیاریوں میں لگا تھا۔ ہم نے اصرار کیا تھا واپس آئے۔ کچھ ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، واپس سری نگر آئے اور اس کے بعد یہ واقعہ بدقسمتی سے انہوں نے تعبیر کیا۔ اس واقعے کے بعد پیراملٹری فورسز یعنی نیم فوجی دستوں، جموں کشمیر پولیس، ایس او جی اور راشٹریہ رائفلز کے اہلکاروں نے موہن پورہ اور آس پاس کے علاقوں میں تلاشی کارروائی میں مزید اضافہ کر دیا۔ آپ کو بتا دیں کہ کلگام میں اس واقعے کے بعد جموں کشمیر پولیس، سی آر پی ایف کے اہلکاروں نے کلگام کے متعدد علاقوں میں اپنے گشت کو تیز کر دیا اور نہ صرف خصوصی ناکے لگوائے بلکہ آس پاس میں پرائیویٹ گاڑیوں اور دوسری گاڑیوں کو تلاشی مکمل ہونے کے بعد ہی آگے بڑھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ٹارگٹ کلنگ پر موہن پورہ کلگام میں بڑے پیمانے پر جو ملیٹنسی آپریشنز، مخالف آپریشنز جموں کشمیر پولیس نے چلائے، لیکن آج اس واقعے کے بعد جس وقت بینک مینیجر وجے کمار کی ہلاکت کے بعد فورسز نے ایک وسیع علاقے کو محاصرے میں لیا۔ ذرائع نے بتایا کہ حملہ آوروں کو تلاش کرنے کی خاطر ڈرون، کیمروں، کھوجی کتوں کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ آہرو، موہن پورہ، کلگام میں
मिलिटेंटों के हाथों बैंक मैनेजर की हिलाकत के बाद फोर्सेज ने जिला भर में हाई अलर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा कि अकलियती अमूर से वाबस्ता मुलाजमीन कुंभों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, जबकि पंडित कॉलोनियों के इर्द गिर्द भी फोर्सेज एहलकार तैनात कर दिए गए। उनके मुताबिक बैंक मैनेजर की हिलाकत में मुलविस हमला आवरों को बड़े पैमाने पर तलाश किया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि हमले की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल की गई है और 2 बंदूक बरदार इसमें मुलविस हैं, जिनकी बड़े पैमाने पर तलाशी जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक वसी इलाके के साथ साथ सेब के बागात को भी मुहसरे में लिया। दरियासना मोहनपुरा कुलगाम में बैंक मैनेजर की हिलाकत के बाद गैर मकामी मुलाजमीन अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं और वो अपने घर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। नाज़रीन, इसी बीच में मटन के इलाके से, जनूबी कश्मीर के इलाके से पंडितों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने एहतजाज किया और वो मुतालबा कर रहे थे कि उनका तबादला फौरी तौर पर जम्मू मुंतकिल किया जाए या किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। हालांकि मुंतकली के हवाले से सरकार ने पहले ही बयान जारी किया कि 6 जून के बाद उन सरकारी मुलाजमीन को प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत या दीगर माइनॉरिटीज के जो मुलाजमीन हैं उनको अपनी अपनी जगहों पर महफूज मकामत पर तबादला किया जा सकता है। तस्वीर में देखिएगा, कुछ देर पहले की है, जहां जनूबी कश्मीर के मटन इलाके में महाजर पंडितों ने एहतजाज किया और वो कोशिश कर रहे थे कि वो यहां से चले जाएं और ताकि जिस वक्त जो ये माहौल बना हुआ है, कुछ ऑडियो क्लिप्स भी हमारे पास पहुंची है बच्चों की, वो अपने अबू और अम्मा से तकाजा करते हैं कि वापस नौकरियां फिर मिलेंगी, लेकिन जिंदगियां कहां मिलेंगी। ये जज्बाती ऑडियो मैसेज जो है सोशल मीडिया पे वायरल हैं और अपने बच्चों को महफूज मकामात की ओर ले जाने की कोशिशें जारी है। इसी बीच में पंडितों के एक ग्रुप ने अपना ट्विटर अकाउंट से मैसेज किया, जिसमें वो कहते हैं कि कल से अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने इजाजत दी तो वो फौरी तौर पर जम्मू के लिए रवाना होंगे। फिदा हुसैन मेरे साथ इस वक्त बराह रास्त जुड़े हुए हैं, जो जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग से इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। फिदा हुसैन, जो एहतजाज आपने कुछ देर पहले दिखाया, मुतालबा साफ था और पुलिस उनको यकीन दहानी करा रही थी कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। जिस तरह से पीके पोले ने और आईजीपी कश्मीर ने पहले ही बयान जारी किए कि इस तरह के मुलाजमीन को पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अब किस तरह की तस्वीर है और क्या मुतालबा थे? 2 पहलू पे अगर नजर डाली जाए, जिला कुलगाम का अरोब मोहनपुरा इलाका, वहां से आज सुबह एक खबर आई, बुरी खबर ही है कि मिलिटेंटों ने एक इलाकाई देहाती बैंक में काम करने वाले मैनेजर पर नजदीक से गोलियां चलाई। उसके बाद वो शदीद तौर पे जख्मी हो जाते हैं। जख्मी हालात में उनको अस्पताल लिया जाता है, वहां पर वो दम तोड़ बैठे। हालांकि डॉक्टरों ने लाख कोशिश की। जो ये खबर फैल गई तो एक बार फिर कश्मीरी पंडित जो है वो एक साथ थे और फिर वो एक साथ एक ही आवाज में उन्होंने एक बार फिर आवाज बुलंद की कि हमें जम्मू मुंतकिल किया जाए। हालांकि इंतजामिया पुलिस कोशिश कर रही है इनको समझाने की कि आप समझने की कोशिश करें, हम आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पर तैनात है, हम आपकी हिफाजत के लिए तैयार है। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट पंडित जो है वो इस वक्त मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए ताकि हम टनल के उस पार पहुंच जाए। हमने इससे पहले कुछ देर पहले कश्मीरी पंडितों के साथ बात की। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है वो खुद उनसे मिले, उनको समझाने की कोशिश की। खुद पुलिस के जो बड़े ऑफिशियल्स है वो उनके पास गए, उनको समझा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात, सिक्योरिटी जो है उनके घरों के बाहर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। लेकिन तो क्या तैयार कर रखा है इन प्राइम मिनिस्टर पैकेज मुलाजमीन ने और कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने किस तरह की थी? क्योंकि गवर्नमेंट ने आश्वासन तो दिया लेकिन नताज अभी तक हासिल नहीं किया, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह सॉफ्ट किलिंग होती है, टारगेट किलिंग होती है, और जिस तरह से हमें याद है कि अवामी नुमाइंदों तक भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है हालात वाक़यात को देखते हुए। लेकिन एक आम शहरी को, हज़ारों की तादाद में आम शहरियों को इस तरह से सिक्योरिटी कवर फराहम नहीं किया जा सकता है। इनकी तैनाती पहले जम्मू का भी मुतालबा किया जाता था। तो क्या, चूंकि आपकी मुलाजमीन के साथ बातचीत हुई, वो कहते हैं कुछ भी हो फिलहाल कूच करें, उसके बाद देखें। देखिए, इनका ये भी कहना है कि जब हालात ठीक हो जाएगी तो हमारी घर वापसी फिर हो जाएगी, लेकिन अभी हमें कुछ देर के लिए आप जम्मू के लिए रवाना कीजिए। लेकिन मैं बता दूं आपको कि जहां पुलिस
जहां इंतजामिया जो है वो खुद सामने आ गई, वो खुद इनसे बात कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं, इनके घरों में बैठे हुए हैं, वहां पर सुबह से लेकर अभी तक भी जो है उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जहां पर टारगेट किलिंग्स का जो जिक्र आपने की है, खुद अपनी शुरुआत की है कि टारगेट किलिंग्स, अगर हम पिछले 3 दिनों की बात करेंगे जहां पर एक टीचर जो है उस पर हमला होता है, उसके बाद कल शाम की बात है एक मजदूर जो है उस पर गोली चलाई जाती है, और आज सुबह एक बार फिर जो जिला कुलगाम है वहां पर फिर से गोली चली है। तो कहीं ना कहीं पे इनका हालात ठीक होने आप इजाजत दे दीजिए, लेकिन एक तरफ से सरकार जो है वो खुद सामने आ रही है। सरकार ने इनके साथ कई मीटिंगें की, सरकार ने इनको समझाने की भरपूर कोशिश की है, और सरकार जो है इस कोशिश में है कि ये अभी यहाँ पर ही रहे, इनकी सिक्योरिटी जब तक सूरत हाल मामूल पर आ जाती है। फिदा हुसैन मेरे साथी, ग्राउंड रिपोर्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया बराह रास्त अनंतनाग से। नाज़रीन, ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। कई डिप्टी कमिश्नर ऑफिसों के अंदर जो मुलाजमीन तैनात हैं, सरकारी मुलाजमीन, उनमें कुछ लोग प्राइम पैकेज के तहत या आम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन या मकामी मुलाजिम, उन्होंने एहतजाज किया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि वो घर जाना चाहते हैं, और जब हालात वापस बेहतरी की ओर आएंगे, मामूल पे आएंगे, तो उसके बाद वापसी की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जरा तस्वीरें देखिएगा, जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरे हुए, और जम्मू में भी एहतजाजी मुजाहरे इसलिए हुए क्योंकि बेशतर प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत जिन महाजर पंडितों की तैनाती वादी में दाखिल की गई थी, उसके बाद वो जम्मू पहुंच गए हैं या जम्मू में उनकी तैनाती है, वहां पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इतलात के मुताबिक मुजाहरीन की बड़ी तादाद मुलाजमीन की आगे बढ़ती रही और सिविल सेक्रेटरीट का घेराव करना चाहा, आगे बढ़ना चाहा, जिस पर पुलिस इंतजामिया ने इस जुलूस को पुरअमन तौर पर वापस जाने की हर मुमकिन कोशिश की। मुलाजमीन ने कहा जो हालात बने हुए हैं उसमें मरकज क्या कुछ कर रही है, सरकारें क्या कुछ करेंगी, वो बाद की बात है। आश्वासन दिए गए लेकिन जमीनी सतह पर इसके नताज बरामद नहीं किया जा सके। एहतजाजी मुलाजमीन की एक झलक और उन्होंने जरा इब्लाग को क्या कुछ बताया, आप तक पहुंचा रहे हैं। डिमांड कुछ नहीं है, बस ट्रांसफर चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। हम हाथ जोड़ के आईजी सरकार से यही अपील कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारी इन्होंने प्रमोशनें पिछले 8 साल से बंद की हैं SC वालों की, बाकी स्टेट्स में हो गई है बिहार, लेकिन हमारी जम्मू कश्मीर में नहीं हुई। हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें वो भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें वहाँ से यहाँ बस वापस भेज, हम यहाँ ड्यूटी देना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम 15 साल से अगर वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, अब हमें भी मन करता है कि हम भी अपने यहाँ घर में आकर रहें, फैमिली में रहें। सर हमारे बच्चे भी वहाँ हमारे साथ हैं, हम किस तरह से ड्यूटी दे सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कल को उनको कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे? जैसे ये हमारी एक बैन मारी गई है। जल्दी से जल्दी जितने भी जम्मू रीजन के एम्प्लॉइज जो हैं उनके लिए ट्रांसफर पालिसी जल्दी से जल्दी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लाती है, तब तक हम लगातार जो है धरना करेंगे। और हमारी जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है तब तक वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर होना चाहिए। हमारे जम्मू रीजन के जितने भी 80 एम्प्लॉइज हैं तब तक कश्मीर डिवीजन नौकरी करने नहीं जाएंगे, हम जब तक ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होती है। हमारी वजह से हमारे घर वाले भी घर में टेंशन में बैठे रहे हैं, पता नहीं कौन सी न्यूज़ कब आ जानी है। बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, डर का इतना माहौल है कि बच्चे को स्कूल नहीं भेज पा रहे। अगर डर का माहौल नहीं होता तो रातों रात नाज़रीन, अमूमन इन मौक़ों पर जब अवामी सरकारें होती है तो काबीना वुज़रा फौरी तौर पर खीमा जन हुआ करते थे और मुतअद्दिद इलाकों में वहाँ बैठकर एडमिनिस्ट्रेशन को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने और इन मुलाजमीन के मसाइल को हल करने के लिए रास्ते तलाश किए जाते हैं। फिलवक़्त अवामी सरकार नहीं है। साबिक वुज़राए आला ने इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। PTP सुप्रीमो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने तुरंत उसी वक्त अपने ट्वीट में जम्मू कश्मीर के इस वाक़े पर ज़बरदस्त अफसोस का इजहार किया। PTP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा, विजय कुमार बैंक मैनेजर जो कुलगाम जनूबी कश्मीर में तैनात था कि आज होने वाली एक और टारगेट किलिंग की मजम्मत की। उन्होंने महलूक के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए अपने ट्वीट में कहा, विजय कुमार की टारगेट किलिंग की खबर सुनकर सदमा हुआ। उन्होंने कहा कि हमले की मजम्मत और मौत पर ताज़ियत करने के सिलसिले में ट्वीट करना अब जहन को बेहस करने वाला मामूल बन रहा है। उनका मजीद कहना था कि इस तरह से खानदानों को तबाह होते देखने से दिल छलनी हो जाते हैं। इसी तरह से पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने अपने ट्वीट में इस वाक़े को बड़ी
बड़ी परेशान कुन माहौल से करार दिया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए अपने ट्वीट में कहा, एक बार फिर इंतहाई अहम और अलमनाक खबर आई कि एक बेकसूर शहरी जो कुलगाम के एक बैंक में मैनेजर था को गोली मारकर हिलाक कर गया। इनका ट्वीट में कहना था, ऐसे वहशियाना हरकत की मजम्मत करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। खुदा अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। इससे कबल अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी इस वाक़े को बड़ा जबरदस्त और अफसोसनाक करार दिया। साबिक वजीर और अपनी पार्टी के सरपरस्त आला सईद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मासूम लोगों को इस तरह से मरते देखना दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि कुलगाम में दहशतगर्दों के हाथों एक बैंक मैनेजर की कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। काबिल जिक्र है कि राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले विजय कुमार नामी ये शख्स कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक की शाख में बहैसियत मैनेजर काम करता था। नाज़रीन, श्रीनगर एयरपोर्ट की अथॉरिटी ने इन खबरों की तरदीद की है जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीनगर एयरपोर्ट से आज पंडितों की बड़ी तादाद या वज़ीर-ए-आज़म योजना के तहत काम करने वाले मुलाजमिन की बड़ी तादाद आज श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर रवाना हो चुके हैं। अमूमन इस तरह का रश श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक मामूल का होता है। 16 से ज्यादा फ्लाइटें जो है वो ऑपरेट करती हैं, लिहाजा इसमें कोई ताजुब नहीं है। लेकिन तस्वीर में देखिएगा, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पे देखते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद, बड़ी भीड़, बड़ा रश। बाहर की तस्वीरें और अंदर से भी तस्वीरें आप तक पहुंच चुकी हैं। रश बहुत ज्यादा था, लेकिन आम सयाहों, आम मुसाफिरों के साथ साथ इसमें वो लोग भी थे जो वादी से बाहर जाना चाहते थे। इसी तरह की तस्वीरें, क्योंकि कुछ देर पहले ट्वीट आ चुका है, ट्वीट में आपको एक बार फिर बता दूं, कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि श्रीनगर और अनंतनाग के एडमिनिस्ट्रेशन से खुसूसन उन्हें इजाजत मांगी है ताकि वो कल कौमी शहर से होते होते जम्मू पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि जम्मू में जो एहतजाज है वो जारी रहेंगे और श्रीनगर में एहतजाज जो है वो भी कई एक जगहों पे जारी हैं। कौमी शहर का क्या कुछ हाल है, श्रीनगर की एयरपोर्ट की तस्वीरों के बाद कौमी शहर का रुख करते हैं, जहां पर मेरे साथी, मेरे सहयोगी आरिफ वहीद मौजूद हैं। आरिफ वहीद, ग्राउंड रिपोर्ट में आपका इस्तकबाल है बानीहाल से। मुझे बताइएगा कौमी शहर पर ट्रैफिक का क्या हाल है और इन ट्रैफिक में जो मामूल के मुताबिक रश अमूमन रहता है, क्या इसमें आपने पंडित घरानों के फैमिलीज को भी यहाँ से जम्मू की ओर जाते पाया? जी बिल्कुल सही तजमुल। मैं आपको बताता चलूं कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अक्सर जो है बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और जहां पर आदि कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग को लेकर जो मामला सामने है, तो उसके चलते जिस तरह से मतलब ये कहा गया है पंडित बिरादरी की जानिब से कि वो जो है यानी कश्मीर से जम्मू की ओर जो है और वो अपनी रवानगी शुरू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं पे हमने आज देखा कि आम दिनों की तरह ही जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की वही आवाजाही देखने को मिली, तो कोई उतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है उस हवाले से जो है हाईवे पे देखने को नहीं मिली। लेकिन अलबत्ता इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि कहीं न कहीं हवा जो है थोड़ी सी कौमी शाहराह पे नजर आ रही है, जिसमें कि अब कल की डेट में जो है ये देखा जाएगा कि जो फैसला वादी कश्मीर के अंदर जो है पंडित बिरादरी के लोगों ने लिया है क्या उसको अपनाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अभी तक की जो हमारे पास जो जानकारी है, तो कौमी शाहराह पे जो आवाजाही रहती है टूरिस्ट की या बाकी जो आम गाड़ियों की, वो आवाजाही जो है आज फिर भी जो है आज मामूल के मुताबिक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पे नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि जनूबी कश्मीर से पंडित महाजिरीन प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत मुलाजमीन ने अपील की है जिला इंतजामिया अनंतनाग से, पुलिस और सिविल इंतजामिया से कि उन्हें कल जाने दिया जाए। और जो हमें तस्वीरें मिल रही है इन पंडित महाजरीन की, वो अपनी ज़ाती गाड़ियों में भी अब जो है श्रीनगर से जम्मू की तैयारियों में लगे हुए। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से लेकर पुलिस और सिविल इंतजामिया ने और मेन स्ट्रीम पार्टियों के लीडरान ने पंडित मुलाजमीन को और प्राइम मिनिस्टर पैकेज में इन मुलाजमीन को यकीन दिलाया, इत्मीनान रखें और हालात बेहतरी की ओर आ जाएंगे और मामूल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन सरगर्मियों को देखा जा सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में खासकर वादी कश्मीर में टारगेट किलिंग्स को लेकर आज वफाकी वजीर अमित शाह ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के साथ मुलाकात की। इसमें रा के चीफ इंटेलिजेंस और पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। फाइल शॉट्स कुछ माह पहले के हैं।
जिसमें अमित शाह बैठे हुए हैं। लेकिन आज अमित शाह ने मीटिंग ली जिसमें NSA के साथ साथ रॉ और इंटेलिजेंस के सीनियर अफसरान मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि 3 जून को अब वफाकी वजीर अमित शाह नई दिल्ली में मीटिंग तलब की है, जो यात्रा से लेकर जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी इंतजामात को किस तरह से अब हालात बेहतर करने में गाइडलाइन दी जा सकती है, हिदायत जारी किए जा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जहां पर वफाकी वजीर अमित शाह की 3 जून को होने वाली मीटिंग में वो फीडबैक देंगे। जम्मू कश्मीर से पुलिस चीफ भी साथ जाएंगे और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल में इस पस मंजर में सॉफ्ट टारगेट और टारगेट किलिंग्स को किस तरह से अब हिकमत अमली के साथ डील किया जाएगा, इस पे 3 अक्टूबर को मीटिंग होगी। लेकिन कुछ देर पहले जो मीटिंग खत्म हुई उसमें वफाकी वजीर अमित शाह और NSA के दरमियान जम्मू कश्मीर के हवाले से कई एक मामलात पर बातचीत हुई, जिसमें मौजूदा वक्त में जो सूरत हाल है, जो टारगेट किलिंग्स का चैलेंज है, उस पर भी सीर बहस हासिल की गई। और नाज़रीन, सफर महमूद पे जाने वाले आज़मीन के लिए ये खबर है कि सफर महमूद की रवानगी का सिलसिला जो है वो जल्द शुरू हो जाएगा और सफर महमूद में जाने वाले आज़मीन जो है ये 6000 अब की बार जो होंगे जम्मू कश्मीर से फरीज़ा अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर से पहली परवाज़ जो है 5 जून से आज़मीन के काफिले को लेकर रवाना होगी। ये सिलसिला 15 रोज तक जारी रहेगा, जबकि आज़मीन को लेने और ले जाने के लिए और वापस लाने तक स्पाइस जेट को ही यह जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें पहले भी यह तजुर्बा हासिल है। इसलिए आज़मीन के लिए जो बड़ी खबर यह है कि अब ये जो पहला काफिला होगा ये 6000 आज़मीन पर मुश्तमिल जो है ये अब लगातार 5 जून से शुरू होगा और उसके बाद 15 जुलाई से 31 जुलाई तक आज़मीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और वेसू कॉलोनी में भी बताया जाता है कि पुलिस की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई। इस तरह से पंडित महाजरीन जहां पर भी वादी कश्मीर में रिहाइश पजीर है वहां पर सिक्योरिटी के इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा श्रीनगर स्टूडियो से मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज।